Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Asad. I am the CEO and President of Asad Learning In, a professional training institution providing coaching services, professional training and grooming for professionals and institutions as well. I started my career in '07 with Mobile Zone, working with Ufone. Then I joined Hire and I work with Samsung Airlink Communication. Now I'm working on my own institution, that is Asad Learning In, a professional institution. And my education, I'm a dropout from government college. I did my graduation privately, then I did my MBA from UET. It's a global executive MBA, and with that I have 13 years of experience working with multinational companies and different organizations. I have been certified with a success coach from the Possibilities. I'm in the process of the certification, and I'm the Toastmasters award winning public speaker. I won the table topic speaker and the best prepared speaker, and that made me think that I should be in this field. I'm now working with the youth and with the professional institutions extensively on these areas to improve and to groom themselves for the better results. My core areas are customer services, जिस पे मैंने extensively काम किया है, and employee development, grooming, empowerment. और इस पे we have been working with different multiple organizations जिसमें employees को empower किस तरह किया जाता है. So mostly organizations जो हैं वो empowerment को और authority को mix कर देते हैं. So there are two different segments. Empowerment is empowering them to give their best to innovate the companies, or authority is giving them to use their powers in a very different sense. So we have to differentiate between empowerment and the authority giving. Or दूसरा core area is the customer services, that many institutions, organizations, customer service providers need extensive department of customer services, professionally groomed staff with a professionally trained customer services, जिस पे हम लोग पिछले कुछ 7-8 साल से काम कर रहे हैं, providing different customer service trainings, SOPs, standards, कैसे वो अपनी customer services को improve करके एक अच्छी customer service provide कर सकते हैं, loyal customer create कर सकते हैं. अगर एक customer उनसे खुश नहीं है तो किस तरह उसको retain किया जा सकता है. इसी तरह internal customer भी आ जाते हैं और external customer भी आ जाते हैं, दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है. Rapid decisions based on the complexity of the issues. Sometimes they are good for you, sometimes they are totally disaster for you. In my personal life, rapid decisions मैंने काफ़ी लिए. I left my job without having anything in my hand, out of just expecting that something good will happen. So it was a challenge for me. So rapid decision for me was mostly a challenging, because I don't think that at that time I was immature to take that rapid decision. I don't have anything further in my hand. So वो एक challenge ऐसे था कि वो rapid decision की वजह से मुझे काफ़ी challenges face करने पड़े, काफ़ी जिसे आप कहते हैं कि problems face करनी पड़ी moving towards the next step. Even it was a job, or even it was a client, or even it was a project. A kind of casual attitude. I was not taking anything serious. बड़ा government college as a environment ऐसा था. तब government college GCU बन रहा था. Before it was government college and it was transforming towards government college university. So bunking classes, having fun with friends, taking not care of studies. It was only the statistics, the subject, which जिसकी वजह से मुझे वहाँ से 3 दफ़ा मौका दिया उन्होंने कि जी कर लें पास, बट मैं पास नहीं कर सका. दैट वाज द रीज़न कि कैजुअल एटीट्यूड, हर चीज़ को लाइट लेना, वो बेस उसकी कमज़ोर होगी और एंड टाइम तक मुझे वो चैलेंज फेस करना पड़ा. और इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी कि आई वाज ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज विदाउट कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन. सो कैजुअल एटीट्यूड वाज द कोर एंड द बिगेस्ट हर्डल जिसने मुझे वो प्रॉब्लम क्रिएट की और मुझे वहाँ पर जाने से, उस डिग्री को कंप्लीट करने से रोकता रखा. The importance of education cannot be underestimated. आपकी education, आपकी graduation, master degrees, those are not necessary to be successful. लेकिन to meet the pace, अपने आप को groom करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को educational background होना ज़रूरी है. Meeting the requirement of the industry.
आप देखें कि सक्सेसफुल लोग लाजमी नहीं है कि दे हैव डन ग्रेजुएशंस और ड्रॉप आउट के बाद नहीं, बट फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर माई अप्रोच वाज दैट कि एटलीस्ट एजुकेशन हो, थोड़ा सा पॉलिश हूँ, थोड़ा सा ग्रूम करूँ अपने आप को, जो गलती मैं कर चुका हूँ उसको साफ करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ बेहतर करना पड़ता है टू कम अप में। तो उस गलती को सुधारने के लिए आई हैव टू कंप्लीट माई एजुकेशन। प्राइवेटली मैंने बीए किया और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, जस्ट मतलब जैसा भी हुआ वो अल्लाह ही जानता है। उसके बाद फिर मैंने प्रोफेशनली फिर आई डिसाइडेड टू गो फॉर एमबीए इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। आई एम एन एमबीए ग्लोबल एग्जीक्यूटिव एमबीए फ्रॉम यूईटी आईबीएम। तो उसकी रीज़न इसलिए ज़रूरत पड़ी कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड विद द एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्री। सो द बोथ हैव टू गो साइड बाय साइड एंड दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। Toastmasters is an international organization of public speakers. They provide different chapters all over the world, और it's one of the oldest organization in the world. तमाम दुनिया में वो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, काफ़ी चैप्टर्स हैं और पाकिस्तान में अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है और वो सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। दे ट्रेन यू हाउ टू स्पीक ऑन द स्टेज, दे ग्रूम यू, दे गिव यू द गाइडेंस। उनकी प्रॉपर एक कोर्सेज है, 16 मीटिंग्स हैं, देन यू गो फॉर द इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप, फिर उसमें कम्पीट किया जाता है। दैट इज़ द प्लेटफॉर्म विच इज़ द बेस्ट फॉर पब्लिक स्पीकिंग, फॉर जिन लोगों में है कि जो वो स्पीक कर सकते हैं स्टेज पे। एंड आई थिंक इट शुड बी नेसेसरी फॉर बिजनेस स्कूल्स कि दे शुड हैव एटलीस्ट वन चैप्टर इन देयर इंस्टीट्यूशंस ऑफ टोस्ट मास्टर्स। एंड आई बिलीव दैट टोस्ट मास्टर्स जो पाकिस्तान में है अभी इनकी प्रेजेंस उस लेवल पे नहीं है। सो वी हैव टू क्रिएट सम अवेयरनेस इन द पब्लिक कि वो टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन करें। डिफरेंट क्लब्स हैं, लाहौर में हैं, कराची, इस्लामाबाद, नेशन वाइड क्लब्स फॉर्म हो चुके हुए हैं, उनको ज्वाइन करें, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ये उनके अपने लिए बेहतरी है क्योंकि कल को दे इफ़ दे आर ऑन एनी स्टेज, नॉट ऑन टॉकिंग ऑन द स्टेज, फॉर देयर इंटरव्यू के लिए भी मुझे सबसे ज़्यादा ग्रूम किया। मुझे अगर पब्लिक स्पीकिंग आई है या मुझे अगर ये इस तरह बोलना आया है तो इट वॉज ड्यू टू द टोस्ट मास्टर। जो पैटर्न था, जो उनका एक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ द बेस्ट आई थिंक टू ग्रूम यू एंड टू मेक यू अ गुड पब्लिक स्पीकर। The basic purpose is to provide the best services in the industry to जो challenges हमने देखते आए हैं, जो अब एज अ कस्टमर हम फेस करते हैं, एज अ एम्प्लॉय फेस किए, एज अ एंटरप्रेन्योर फेस किए, एज अ फेलियर, एज अ सक्सेस, टू एड्रेस इट। उन इश्यूज़ पे बात करने के लिए, उन इश्यूज़ पे गाइड करने के लिए, टू गिव सोल्यूशंस ऑन इट कि ये चैलेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जॉब इंटरव्यूज़ में क्या क्या चैलेंजेस आए, किस वजह से जॉब छोड़ी, किस वजह से जॉब में एडजस्टमेंट नहीं हो सकी, प्रमोशन नहीं प्रॉपर टाइम नहीं हो सकी, उस तरह की ग्रूमिंग गाइडेंस विद इन हाउस, ओपन हाउस। फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, एवरीबडी इज़ नाउ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर विदाउट नोइंग दैट कि उसकी कैपेबिलिटी है या नहीं है। सो बेसिकली अपने आप को भी देखते हुए कि क्या चैलेंजेस फेस किए, किन चीज़ों पे काम करते हुए एंटरप्रेन्योरशिप अपने स्टार्टअप को लेके चला मैं, और किस तरह उसको मैं अब एक रनिंग फेज में लेके चल रहा हूँ। और तीसरी चीज़ जो है, जो कोचिंग है, सक्सेस कोचिंग। ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप दुनिया में कोई भी देख लें, सक्सेसफुल पीपल दे हैव देयर ओन कोच। हर बंदे का कोई ना कोई कोच ज़रूर होता है, टू लिसन, टू गाइड, टू नर्चर देम, टू गिव देम द गाइडेंस। सो सक्सेस कोचिंग की मेन पर्पज़ यही है, टू गिव देम द बेस्ट ऑफ द लाइफ, टू नो देयर ओन सेल्फ, ताकि वो एटलीस्ट इन चैलेंजेस को प्रॉपर्ली मीट कर सकें। और जो कस्टमर सर्विस है और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर कंपनीज है, उसके लिए है कि उसकी एक्सटेंसिव ज़रूरत है, बेस्ड ऑन कि हमें फील हुआ कि हमारी अगर टेन्योर में ये ट्रेनिंग्स होती रहती तो हम शायद अच्छा ग्रूम कर जाते, जो कि हमें बहुत देर बाद समझ आई। तो इसकी दैट इज़ द रीज़न कि वो इंस्टीट्यूशन, मेरा जो फॉर्म करने का मकसद वही था कि इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस को, मल्टीनेशनल है, लोकल कंपनीज हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करने का यही मकसद है कि दे गिव द बेटर रिजल्ट्स। द हैप्पियर योर एम्प्लॉयर्स, द हैप्पियर कंपनीज, और योर कंपनी इज हैप्पियर एंड यू हैव गुड प्रॉफिट्स। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू हैपन ओवरनाइट। हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होता है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन इट। अगर आपने अपना स्टार्टअप किया है, अपने आप के कोई अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा पेशेंटली, थोड़ा सा परसिस्टेंटली उस पर काम करें। आप एक रात में ना तो बिलियनियर बन सकते हैं, ना मिलियनियर बन सकते हैं।
तो इसको थोड़ा सा अपने आप को क्रूज कंट्रोल करते हुए थोड़ा सा अपने आप को तहम्मुल मिजाजी के साथ उस चीज़ पर कंसिस्टेंट रहें, और साथ उसके ये कि नो योर सेल्फ, कि यू आर एंटरप्रेन्योर और यू आर गुड एट जॉब और यू आर गुड एट सर्विसेज, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ, कि ना कि लोगों को देखते हुए, किसी को देखते हुए आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते अगर आप खुद नहीं हैं। तो ट्राई टू एक्सप्लोर योर ओन कैपेबिलिटीज, कोर कॉम्पिटेंसीज को जानें, उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या क्या हैं, क्या करना चाहते हैं। इंस्टेड के बाद में जो आप एक स्टार्टअप के बाद दोबारा जॉब ढूंढेंगे, तो बी परसिस्टेंट, अपने आप को जानने की कोशिश करें, और अगर अपने आप को जितना जल्दी जान लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है कि आप ज़्यादा अच्छा ग्रूम कर जाएंगे।